Hello, grade 11th. Welcome to my YouTube channel. Let us do question number 5. Using PMI, prove that 1 into 3 plus 2 into 3 square plus 3 into 3 cube up to so on n into n 3 raised to power n equals to 2n minus 1, 3 raised to power n plus 1 plus 3 upon 4. So first of all, we are going to prove this result is true for n equals to 1. तो बेटा यहाँ देखो n इक्वल्स टू 1 के लिए मतलब कि आपको मिलेंगी 1 इंटू 3 फर्स्ट टर्म एंड योर फर्स्ट टर्म इज 1 इंटू 3. सो योर LHS इज 3. नाउ द RHS वी हैव 2n minus 1, 3 raised to power n plus 1 plus 3 upon 4. Put the value n equals to 1. 2 minus 1, 3 raised to power 1 plus 1 plus 3 upon 4. So we have here 3 raised to power 2 plus 3 upon 4. 3 raised to power 2 is 9. 9 plus 3, 12 upon 4. So we have 3. Therefore LHS equals to RHS. So the result is true for n equals to 1. Next step 2. We have to assume result is true for n equals to k. So this is our assumption. Put n equals to k in the given statement. 1 into 3, 2 into 3 square, 3 into 3 cube up to so on. तो आप यहाँ पर k को n को k पुट करोगे. k into 3 raised to power k, 2k minus 1, 3 raised to power k plus 1 plus 3 upon 4. इसको आप दे दोगे नंबर 1. इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल प्रूव रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1. देखो बेटा हर क्वेश्चन के लिए एक ही मेथड चल रहा है, वही n इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूव कर दो, k के लिए अजम्पशन लेके चलो और k प्लस 1 के लिए फिर प्रूव कर दो. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप 3 इज वी विल प्रूव रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1. वेल I have taken LHS 1 into 3, 2 into 3 square and so on n into 3 raised to power n. Now I am going to put the value of n equals to k plus 1. इसको हम put करते हैं k plus 1. k plus 1, 3 raised to power k plus 1. ठीक है. अब बेटा आपने ये चेक करना है कि इससे प्रीवियस टर्म कौन सी होगी. देखो ये k plus 1 है तो इससे प्रीवियस होगा k. अगर ये 3 रेस्ट पावर k प्लस 1 है तो इससे प्रीवियस होगा 3 रेस्ट पावर k. यही हमारी प्रीवियस टर्म होती है. ठीक है. यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो if you are not aware about it. So write down its previous term k into 3 raised to power k plus k plus 1 into 3 raised to power k plus 1. अब देखो ये जो वैल्यू है 1 इंटू 3, 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस k इंटू 3 रेज टू पावर k, ये आप क्या पुट करोगे इसकी जगह. आप इसकी जगह ये पुट करोगे क्योंकि ये ऑलरेडी सीरीज़ इसके इक्वल दी हुई है, तो इसको मैं रिप्लेस कर रही हूँ इसके साथ. देन इट बिकम्स 2k minus 1, 3 raised to power k plus 1 plus 3 upon 4, and this term will be as it is k plus 1, 3 raised to power k plus 1. तो अब हमने इसको किसी तरीके से सॉल्व करके ये बनाना है राइट हैंड साइड. सो लेट अस सॉल्व इट. तो देखो बेटा इन दोनों में कॉमन क्या है. सबसे पहले जो कॉमन है उसको आप बाहर निकालोगे. कॉमन इज 3 रेज टू पावर k प्लस 1. द लेफ्ट क्वांटिटी इज 2k माइनस 1 प्लस 3 अपॉन 4 प्लस k प्लस 1. नाउ व्हाट विल यू डू. यू हैव टू टेक LCM. प्लीज टेक LCM. LCM will be 4. Students, here we have one mistake. We can't take 3 raised to power k plus 1 common because we have here 3. First of all, I have to separate the quantities, then I will be take common. इस तरह से मैं separate कर लेती हूँ इनको. 3/4 plus k plus 1, 3 raised to power k plus 1. अब हम इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, इसमें से और इसमें से. ठीक है. That was the mistake. Now 3k plus 1 is common. I will get 2k minus 1 upon 4 plus 3 plus k plus 1, and your 3/4 is as it is.
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो ना बेटा 3/4 तो हमें चाहिए, उसको तो हम कुछ चेंजेस करते ही नहीं है, हमें सिर्फ ये क्वांटिटी बनानी है। 3/4 हमारा ऑलरेडी आ चुका है। टेक द एलसीएम। 2k - 1 + 4k + 4 अपॉन 4 + 3/4. Now 2k + 4k is 6k. 6k + 3. It becomes 6k + 3 upon 4 + 3/4. Now what is common here? 3 is common. Take 3 outside. You can see I have taken 3 as a common, and 3 raised to power k + 1 plus into 3 will be 3 raised to power k + 2. Base same, power will be added. ठीक है, अब बेटा देखो, आपने इन द बिगनिंग यू हैव पुट n = k + 1. n को पुट किया था हमने k + 1. ठीक है, तो k + 2 किसके इक्वल होगा? n + 1 के। दोनों साइड अगर आप n + 1 करोगे तो n + 1 किसके इक्वल हो गया हमारा? k + 2. तो k + 2 को हम लिखेंगे n + 1. ठीक है, सिमिलरली अब देखो, आपका 2k + 1 है, इसको भी तो रिप्लेस करना है n में। k किसके इक्वल था? n किसके इक्वल था? k + 1 के। तो k किसके इक्वल हुआ? n - 1 के। इस k को मैं पुट कर रही हूँ n - 1. 2n - 2 + 1, 2n - 1. देखो 2k + 1 हमारे पास किसके इक्वल आ गया? 2n - 1 के, राइट। तो इस k को आप पुट कर दो, 2n - 1 + 1 upon 4 + 3/4 as it is. It becomes 3 raised to power n + 1, 2n - 2 + 1 upon 4 + 3/4. 3 raised to power n + 1, 2n - 1/4 + 3/4. Now you can take LCM. 3 raised to power n + 1, 2n - 1 + 3, which is equal to RHS, hence root. ठीक है, तो प्योरली बेस्ड अपॉन कैलकुलेशन ठीक कर रहे हो तो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, अदरवाइज यू कैन डू मिस्टेक. कम टू द नेक्स्ट सम. Using PMI, prove that 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, up to so on n × n + 1 equals to n × n + 1, n + 2 upon 3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द सेम स्टेप. स्टेप 1, n = 1 के लिए, तो 1 के लिए मतलब ओनली फर्स्ट टर्म 1 × 2, यू हैव टू टेक 1 × 2, 1 × 2 इज़ 2. अब आप RHS लोगे, RHS है आपकी n × n + 1, n + 2 upon 3, जिसमें आप n को क्या पुट करोगे? आप n को 1 पुट कर दीजिए. 1 × 1 + 1 into 1 + 2, 1 + 1 is 2, 2 × 3/3, 3 3 कैंसल, आंसर इज 2. तो यहाँ से हमें मिलता है LHS = RHS. कम टू द नेक्स्ट स्टेप. लेट अस assume that result is true for n = k. In the same manner you will replace n by k. ठीक है, जो भी आपकी स्टेटमेंट है उसको n और k को रिप्लेस कर देंगे आप. n को k के साथ रिप्लेस करेंगे. 1 × 2, 2 × 3 अप टू सो ऑन k × k + 1 equals to k × k + 1, k + 2/3. इसको आप कोई भी नंबर दे सकते हो क्योंकि हमने ये रिजल्ट आगे जाकर यूज़ करना है. तो अब आप प्रूव करोगे. वी विल प्रूव रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n = k + 1. अब आप लेफ्ट साइड में n को k + 1 पुट करोगे और राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश करोगे. ठीक है, तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है. 1 × 2, 2 × 3 अप टू सो ऑन n × n + 1. n को आप क्या पुट कर रहे हो? k + 1. n को आप k + 1 पुट कर दीजिए. k + 1, k + 1 + 1. So it becomes 1 × 2, 2 × 3 up to so on k + 1, k + 2, k + 2. तो बेटा यहाँ पर देखो, इससे पहले कौन सी टर्म होगी? k + 1 से पहले क्या होगा? k होगा, और क्या होगा? k + 1. ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से भी आइडिया ले सकते हो n × n + 1. तो इससे प्रीवियस टर्म इज़ k × k + 1. तो अब बेटा ये किसके इक्वल है? आपने होप सो नोट डाउन किया हो, तो ये इसके इक्वल है, मतलब जिसको हम रिप्लेस कर देते हैं k के साथ. k + 1, k + 2 upon 3 एंड योर राइट हैंड साइड इज एज इट इज़. बेटा यहाँ पर बीच में प्लस है हर एक टर्म के, तो यहाँ पर भी प्लस आएगा. ठीक है,
प्लस इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है कि कहाँ पर मल्टीप्लाई है और कहाँ पर प्लस है, अदरवाइज़ यू कैन कमिट अ मिस्टेक, बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि फिर बनता नहीं है आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, हर एक टर्म में प्लस था तो हमने भी इन दोनों टर्म्स के बीच में प्लस का साइन डाला तो यहाँ पर प्लस आ गया। ठीक है, अब इनमें से देखो कॉमन क्या है, वेरी ऑब्वियस इट इज़ k+1, k+2 इज़ कॉमन। हमेशा कॉमन निकलेगा ही निकलेगा, निकालना भी है, अदरवाइज़ तो मल्टीप्लाई मत करने बैठ जाना। ठीक है, वो तो क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, इन द एंड यू हैव टू मेक फैक्टर, इट विल कंज्यूम मोर टाइम। Common is k+1, k+2. You will get k/3 + 1. Take the LCM. k+1, k+2. LCM will be k+3/3. तो क्वेश्चन आपका सॉल्व है काफ़ी हद तक। तो ये आपको मिला k+1, k+2, k+3/3। अब बेटा देखो n किसके इक्वल था, k+1 के, तो n+1 किसके इक्वल होगा, k+2 के। ठीक है, +1 करके, और n+2 किसके इक्वल होगा, k+3 के। तो मैं डायरेक्टली इनको पुट कर रही हूँ, k+1 है हमारा n+1 n+2/3 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, which is, please write down, which is equal to right hand side. Therefore left side equals to right side, hence proved. हर क्वेश्चन में बेटा आपने राइट हैंड साइड ही बनानी है और बन जाती है। कई क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन स्किप किया है, उसमें कुछ मुझे लग रहा है कि वो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया है। तो कोशिश करेंगे, आप ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो मैं करवा दूँगी। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट सम। Next question, question number 9. Using PM, I proved that 1/2 plus 1/4 plus 1/8 up to so on 1/2 raised to power n equals to 1 minus 1/2 raised to power n. तो ICSE स्टूडेंट्स को देख के पता चल गया होगा कि कौन सी सीरीज़ है, इट इज़ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो वहाँ पर आपने प्रूव भी किया होगा, होप सो, ये वाला रिजल्ट। तो अब इसको PMI से करते हैं। और जो CBSE के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज्योमेट्रिक सीरीज़ नहीं पढ़ी, हम पढ़ेंगे इसको। आई थिंक योर 9 चैप्टर इज़ ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज़, उसमें हमने ये दोबारा से स्टडी करना है। तो स्टेप 1 अगेन n=1 के लिए आप प्रूव करोगे, और स्टेप 2 अजम्पशन लेके चलोगे n=k के लिए। तो मैं ये एक बार में ही ये सारा लिख देती हूँ। वेल यू कैन सी स्टेप 1, लेट अस प्रूव रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n=1। n को 1 पुट करो, 1/2 आएगा। 1/2 मीन्स फर्स्ट टर्म ओनली। RHS इज़ 1 minus 1/2 raised to power n। n को फिर 1 पुट करोगे, 1 minus 1/2, 1 minus 1/2 is 1/2, LHS equals to RHS. Step 2 is let us assume that result is true for n equals to k. Sorry, गलत लिख दिया, n equals to k. Let us assume that result is true for n equals to k. तो यहाँ पर n को आप रिप्लेस करोगे k के साथ, 1/2 plus 1/4, 1/8 up to so on 1/2 raised to power k equals to 1 minus 1/2 raised to power k. In the step 3 we are going to prove result is true for n equals to k+1। तो हम k+1 के लिए चेक करते हैं कि ये ट्रू है या नहीं। ठीक है, तो LHS कंसिडर कर लो, n को पुट कर दो 2 raised to power k+1। इससे प्रीवियस टर्म भी आप साथ ही लिख लिया करो, इससे प्रीवियस टर्म होगी 2k, 1/2k। तो बेटा चेक करो, 1/2k, 1 plus 1/2, 1/4 plus 1/8 किसके इक्वल है, 1 minus 1/2 raised to power k। तो इसको मैं रिप्लेस कर रही हूँ, 1 minus 1/2 raised to power k के साथ, और रेस्ट ये एज इट इज़ आएगा। तो हमने इस तरह से रिप्लेस कर दिया है। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे। कॉमन देखो कैसे लेना है, ये एज इट इज़, एंड 2k+1 को आप स्प्लिट करोगे, ब्रेक करोगे, 2 raised to power k इंटू 2। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, 1/2 raised to power k। इसको बेटा ऐसे लिख लो, क्योंकि माइनस की गड़बड़ ना आप कर दो, +1। कॉमन इज 1/2 raised to power k, 1/2 minus 1 plus 1। now 1/2 minus 1 is minus 1/2 plus 1। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखो आपके पास ये आ गया। नाउ बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी, -1/2 raised to power k+1 plus 1, इट विल बी रिटन एज 1 minus 1/2 raised to power k+1। and what is k+1? it is
n। तो हमने बड़ी जल्दी से RHS बना दी है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यू कैन चेक, हेंस द रिजल्ट, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो बेटा अब आपका जो होमवर्क है वो है, यू आर टू डू क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 7 and question 8, NCERT exercise 4.1. So this is your homework 4, 7 and 8, and if you're not able to do, please let me know. Thank you.